Rishabh, I'd like to talk to the people and ask them about the vibe, what they feel. आपका नाम बता दीजिए. मेरा नाम है प्रमीजित भट्टाचार्य जी. Seem like a first time voter. Are you a first time voter? Yes, I am a first time voter. So क्या issues कुछ थे दिमाग में that you've kept in your mind before casting your vote? Obviously issues तो है. Firstly, see, there's this developmental issue. There's this constant clash between the central government and the state government. That's another issue. And the prime focus that this time around, that we first time voters and also all the voters of West Bengal particularly have focused on is that we want development. We don't want false promises. Firstly, what many political leaders think that just before elections, if you announce schemes that doesn't have real implementation, then sorry, we have news for you. Then you see 92% turnout, then you see 90% turnout, and in Bhawanipur itself, till 5 p.m. you see above 85% turnout. And also, I just wanted to know everything is peaceful here because just 200 meters away there was a violence that also reported. Everything is free and fair. Is there something to worry about? Were you scared before you went to cast your vote? See, the situation in West Bengal, especially in the last 10 years, that has evolved is that people of West Bengal are getting scared day by day when especially the election season is going on because of that constant violence. But this time around, let me quote, this time around, the situation managed by the Election Commission of India and also the central forces have encouraged people. Otherwise, you wouldn't have seen that 90% turnout is happening in West Bengal at all. So the turnout itself speaks for the fact that this time around, violence has no place in elections and free and fair elections will prevail once again in West Bengal. सर आपका नाम बता दीजिए. जगत किशोर भगत. सर क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको दिमाग में रख के आपने वोट करा होगा? लोकल हो सकता है, नेशनल हो सकता है, और अभी की बात करें यहाँ सब शांतिपूर्वक है. वोट खूब शांतिपूर्वक हुआ है, बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ है और डेवलपमेंट के ऊपर ही वोट हुआ है. कारण यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, शिक्षा स्कूल की अवस्था अच्छा नहीं थी, हॉस्पिटल की अवस्था ठीक नहीं था, जिसके कारण पब्लिक वोट दिया है. मैम आपसे भी सवाल सेम ही रहेगा. क्या मुद्दे थे जिसको दिमाग में रख के आपने वोट करा होगा? देखिए यही मुद्दा था कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है. हमें महिला की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है ये बंगाल में. आप तो आर्जिकल का घटना देखे होंगे, इसीलिए हम महिलाएं लोग एक साथ सोचे कि अब कुछ अच्छा सोचना चाहिए. जो अच्छा सोचने के लिए इसलिए बंगाल में हम लोग वोट दिए हैं. और एक और चीज़, यहाँ सब शांतिपूर्वक था क्योंकि एक वायलेंस भी यहाँ थोड़ी देर मतलब 200-100 मीटर दूरी हुआ दोपहर में. पर कोई डर था वोट करने से पहले या सबसे? ऐसा कुछ नहीं, डर तो हुआ नहीं है, एकदम शांति. आपका नाम बताइए. रोहित सर. यहाँ कुछ मुद्दे हैं, लोकल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, जिसमें दिमाग में रख के आपने वोट करा होगा? नहीं कुछ नहीं, सब सही है. आपका नाम बताइए. My name is Wasim Ahmed. So I just wanted to know about the fact I asked him as well. The same question goes for you. Is there an issue that was in your mind before you casted your vote? Can be national, local, कुछ भी. From the day Trinamool Congress has came to power, the only thing Bengal has seen is violence. This is the only election where you can see not a single drop of blood has been shed. It is totally hats off to the central government and central forces which has conducted such a peaceful poll. But again, there was a violence also reported 200-400 meters away from where we are right now. But comparatively, that violence was not that brutal. Earlier, 2 to 3, 4, 5 people used to die on election day. But this time, thing has totally changed. Now people have... Yes, of course, you can see the margin, you can see the average, the percent of the people have voted. That is the biggest report you can get. आपसे भी सेम सवाल ही रहेगा. क्या मुद्दे क्या होंगे सर जिसको मद्देनजर रखते हो आपने वोट करा होगा? नेशनल हो सकता है, लोकल हो सकता है, कुछ लोगों ने काफी मुद्दे बताया. आपके हिसाब से क्या होगा? सबसे बड़ी मुद्दा है कि मेरी बेटी की उम्र 18+ हो गया. मेरी बेटी 18+ की हो गई है. जिस तरह से सीएम मंच पे खड़ा होकर बोल लिया कि 8 बजे के बाद आप मत निकलो, उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वोट नहीं देना इनको. मुझे डर है अपने बेटी के लिए. और मैं देखता हूँ जो जोमेटो, स्विगी वगैरह जो बच्चे काम करते हैं, सब एमए किए हुए, डबल एमए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए बच्चे, नौकरी नहीं है, बेरोजगार. 50 रुपये 40 रुपये उनको हर टिप का मिलता है. और भवानीपुर की बात करें, यहाँ सब शांतिपूर्वक है. यहाँ क्योंकि वायलेंस भी देखा गया था, हम खुद वहाँ थे कवर करने के लिए. यहाँ वैसे सब शांतिपूर्वक. एक्चुअली सबसे बड़ी बात मैं आपको एक अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ. अभी मेरे बूथ पे यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक लेडी रहती है, दीदी.
और उनके फादर, उनके हस्बैंड 2015 के बाद आफ्टर 2015 उन्होंने वोट नहीं किया था। आज उन्होंने वोट किया। आप सोचिए कि माहौल कैसा था कि वो वोट नहीं करने आते। उनको डर का खौफ जो था वो कट गया इस बार सेंट्रल फोर्स का जो काम, जिस तरह से उन्होंने रूट मार्च किया है, लोगों के अंदर से डर को मिटाया, हम लोगों ने निकल कर वोट किया। इसी का नतीजा है कि आज 90% पोल हो रहा है। आपका नाम? हमारा नाम पिंटू अधिकारी है। सेम रहेगा। क्या मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? नेशनल हो सकता है, इशू लोकल हो सकता है। बांग्ला का डेवलप नहीं होने से पीछे चला गया, 100 साल का पीछे चल गया। बिहार देखिए सामने आ गया पूरा, उसका महिला का नौकरी मिल रहा है, आदमी का पूरा नौकरी, सरकारी नौकरी मिल रहा है। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, पीछे चला गया। ये ममता सरकार 100 बजे पीछे कर दिया, तो ये चेंज करना होगा, नहीं चेंज करने से होगा नहीं। आपका नाम बता दीजिए। आप खुद एक युवा नजर आते हैं। अरिजीत मुखर्जी। अरिजीत जी, युवाओं की क्या डिमांड है? व्हाट आर द युवा डिमांडिंग? क्या इश्यूज है, मुद्दे हैं? किसी ने डेवलपमेंट कहा, किसी ने और कुछ कहा, वुमेन सिक्योरिटी सेफ्टी का आपके हिसाब से क्या है? ये जो चुनाव आप देख रहे हैं बंगाल में, ये डेवलपमेंट के लिए चुनाव है, ये युवा पीढ़ी का नया सीख के लिए चुनाव है। आप देखिए, ये युवा पीढ़ी को खत्म कर दिया ममता बनर्जी का सरकार, पूरा वो एकदम से खत्म कर दिया। और जो युवा है ये बाहर चला जा रहा है, ये अपना स्टेट छोड़ के। इसीलिए ये स्टेट का जो अभी इलेक्शन हुआ है, ये एंटी इनकम्बेंसी के लिए हुआ है, ये सरकार के खिलाफ वोट हुआ है। और यहाँ का जो महल है, डर से घर से निकलने से वो लोग जो डरता है, ये डर को अभी इलेक्शन कमीशन दिल से डर निकल दिया। अभी यहाँ सब शांतिपूर्वक करा गया, कोशिश किया वो लोग। शासक है यहाँ का टीएमसी गवर्नमेंट था, रूलिंग पार्टी,